Welcome all of you. With Ansarkari, we are going to discuss General Studies Paper 2 Polity Questions. We are taking up in a series and we are trying to understand behind the scenes insights and trying to see how we can learn during the course of writing only without challenging ourselves negatively and without feeling the choking pressure that I have done something right or wrong. Because that is the beauty. We are originally trying to write in an authentic way. No answer is written with any kind of support. It is everything is being done in exam like conditions. And we have definitely more to do because every answer is a precursor to success. Should the premier institutes like IIT IIMs be allowed to retain premier status? Allowed more economic independence, more academic independence in designing courses, and also decide mode or criteria of selection of students. Discuss in the light of growing challenges. So, growing challenges is a very broad term. It had been in news, and definitely in the last couple of years, if you see, the IIT and IIMs, they have been given due independence, but now the government is also having a great say, central government. Ministry of HRD has, they have also played a very important role. So, very true. They should allow to retain premier status, but then little interventions, little bit of changes are required. Let's see what is written in the answer. Education earlier a state subject was made a concurrent subject with 42nd Constitutional Amendment to maintain uniformity and equality of opportunity to all sections. The change was recommended by Swansea Committee. I think very well start, simple, beautiful, and no complex start. It should not be a hindrance to education, accessibility, and affordability. So again, the word is repeated. So premier status means world class standards. That is premier. Rather, premier status should be signify the quality of curriculum, professors, and infrastructure. Very true. Institute of Eminence object is to issue world class status and attract foreign students, thus plugging brain drain and also making India a hub or a center of knowledge economy and also a kind of a R&D global hub. Academic independence should be allowed to the tune of UGC guidelines. Full freedom might create एजुकेशन गैप. सो अपने आप आपने लिखा है तो इसीलिए आप वो सरकार का ये वाला मुद्दा नहीं लेके आए तो लेकिन ठीक है अच्छी कोशिश है ये भी एक अच्छा इनोवेटिव स्टाइल है जिसमें हम अपने पॉइंट्स खुद लेके आते हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अलाउज वोकेशनल कोर्सेज एंड स्किल्स इन डिमांड टू समर स्कूल. बिल्कुल सही बात है. मूक्स इंश्योर्स inclusivity for women education. I think good point. Should remain competitive and transparent as recently IIT और IIMs की बात हो रही थी actually. Transient by due to CUT interest only. Attention to drop in girls admission as a result is vital. ये IIT IIMs में भी हो सकता है कि more number of girls कैसे आए. Therefore, a consultative approach aligning with India's growth trajectory is needed, as suggested by Parliamentary Committee on Education. तो आई थिंक बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे, लेकिन जब ये पॉइंट्स अगर आप क्वेश्चन पे जाते हैं तो पॉइंट ये हो रही है कि क्या उनको ये स्टेटस रिटेन करने दिया जाए. चैलेंजेस क्या ग्रो हो रहे हैं. तो आपने प्रीमियर स्टेटस डिस्कस कर दिया और आपने जो है उसके बाद एकेडमिक इंडिपेंडेंस भी डिस्कस की, लेकिन चैलेंजेस क्या है. ये जो प्रीमियर स्टेटस रिटेन करने का चैलेंज है वो चैलेंज क्या है, या फिर जो एकेडमिक इंडिपेंडेंस की बात हो रही है उसके पीछे चैलेंज क्या है. तो चैलेंज ये है कि क्या आप इम्पार्शियलिटी जैसा भी आपने बोला, या क्या आप जो करिकुलम जो स्टैंडर्ड है वो क्या मेंटेन कर पाएंगे. पहला चैलेंज तो यही है. और अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर क्या होगा भाई, फिर क्या करें. सरकार तो इंटरवीन नहीं कर सकती ना, जैसे तो क्या करेंगे फिर. अभी जैसे आपके IIM रोहतक के जो VC कहा जाएगा या क्या कहूँ मैं, मुझे पोस्ट याद नहीं आ रही, उन्होंने अपने टेन्योर में अपने नाम ही 3 करोड़ रुपए करवा लिए एक्सपेंडिचर के, ऊपर से एलिजिबल भी नहीं है. तो ऐसे तो भाई प्रीमियर इंस्टीट्यूट खत्म. जैसे IIT कानपुर है, IIT चेन्नई, IIT मद्रास है, IIT बॉम्बे है. कैसे उनका प्रीमियर स्टेटस है और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दी उनको कोर्सेज डिजाइन करने में, लेकिन कोर्सेज जो है वो कल्चरली भी अलाइन होने चाहिए और जॉब के लिए तो अलाइन होने ही चाहिए. और मोड है उनके पास, IIT के पास अपना है, जेई है एंट्रेंस उनका. जेई को तो सरकार ने नहीं छेड़ा. सरकार तो बिल्कुल नहीं छेड़ रही. सरकार तो बल्कि ये चाहती है. चैलेंज क्या है. चैलेंज ये है कि जो SC ST की सीट्स हैं, ये जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपके कैंपस में इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स, वो नहीं हो पा रही है. या आपके कैंपस के अंदर मान लो कैंपस अगर सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर वो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज है, हमारी जो मैथोलॉजी है उसका मजाक उड़ाया जाता है मान लो, तो चैलेंज हो गया. फिर वो तो एक तरीके से अर्बन रेडिकलिज्म का अड्डा बन जाएगा. ये है चैलेंज. मतलब एक बात हो रही है ना, अर्बन नक्सल जैसे बोला जाता है. तो मैं ये नहीं कह रहा कि वही बात है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाँ प्रीमियर स्टेटस तो उनको रिटेन करना चाहिए, करने में इंडिपेंडेंस भी एकेडमिक दे भी जाए, लेकिन भाई चैलेंज क्या है.
चैलेंज यही है फिर कि कैसे आप अपने इंस्टीट्यूशन को और डाइवर्स बनाएंगे। जैसे अब जानजीबार में हमने खोल दिया एक कैंपस, आईवी लीग ही सब जाएं क्या, हम यहाँ नहीं कर सकते क्या उतने लेवल का, ये है ना पॉइंट। तो इंडिया की जो बात हो रही है कि इंडिया इंडस्ट्रियल हब बने, इंडिया जो है 5 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, वो बनेगा कैसे, वो ये चैलेंज है। तो यानी आपको एक बात तो आधा आंसर आपको ये बताना है कि आईआईटी आईएम अपने आप में कैसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा एलिमेंट ये हो गया कि आईआईटी आईएम को जो जो स्टेटस और जो उनका सारे इंडिपेंडेंस है, उसका पूरी बड़े उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जी। चैलेंज यही है कि जब उनको आप प्रीमियर स्टेटस रिटेन करने का या एकेडमिक इंडिपेंडेंस देते, तो वो ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस दे सकते हैं। एयर पोल्यूशन है, या फिर आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ टेक्निकल जो चीजें हैं, कमर्शल कोई टेक्नोलॉजी है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर और ईवी से लेकर और स्टार्टअप से लेकर, तो ये है चैलेंज। जी। तो ग्रोइंग चैलेंज ये सारे हैं जो हमारे देश को जो चैलेंज हैं, जो इकोनॉमी को चैलेंज है, वही चैलेंज हमारे इंस्टीट्यूशन को। तो क्या हमारे इंस्टीट्यूशन उससे सिंक हैं? अगर उससे सिंक में है तो चैलेंज हम ओवर पावर, तो ये वाली बात ऐसे लिखना है मेरे हिसाब से, हाँ जी। क्योंकि चैलेंज पूछ रहा है। तो बाकी आपने कोशिश की और पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन आपने वर्ड पकड़ लिए और आपने क्वेश्चन हम्म। पे ध्यान शायद इतना नहीं गया, आपने वर्ड पकड़ लिया। अब इसको देखते हैं, आधार और एनपीआर दो पैरेलल स्कीम्स हैं, एक वॉलेंटरी है और एक कंपलसरी है। तो आधार कंपलसरी है कि आधार वॉलेंटरी है? ज्यादा वॉलंटरी है। वॉलेंटरी है, लेकिन उसके बिना कुछ हो नहीं सकता, पंगा ये। हाँ। दे हैव लेड टू डिबेट्स एट द नेशनल लेवल एंड आल्सो लिटिगेशंस। डिस्कस बोथ द स्कीम, अगर स्कीम को हम कंकरेंटली चलाएं, चल सकती है। और पोटेंशियल क्या है इन स्कीम्स का, डेवलपमेंट बेनिफिट्स एंड इक्विटेबल ग्रोथ। पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो आसान है। तो ट्विन स्कीम्स ऑफ आधार एंड एनपीआर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड इंस्टेड ऑफ ओवरलैपिंग and strengthen the network of inclusivity and precision real time। ठीक बात, चलो। Relevance of the scheme, other 12-digit identity beneficiaries to prevent duplication and NPR conducted by NSA as a part of census exercise। Aadhaar database's intention to plug the leakages, effective implementation, whereas NPR is assessment of changing demography to design policies। हाँ, मतलब कि टू फाइंड इलीगल इमिग्रेंट्स जो हमारे देश में आ गए हैं, सिटीजनशिप को पता लगाता है ना एनपीआर, तो नेशनल जी। पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ठीक बात है, चलो। आधार इज वन टाइम एक्सरसाइज, एनपीआर इज पीरियोडिक एवरी 10 years, and that traces the population pattern। Now the schemes might have some data overlap but not the objective and purpose। अच्छा लिखा, कोशिश अच्छी की आपने। और आपने डेवलपमेंट बेनिफिट दोनों के बहुत अच्छे बनाए। आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन, सॉल्व द एक्सक्लूजन चैलेंज, द फिंगर पॉइंट मिसमैच हो गया, डाटा, ठीक है, ये पॉइंट्स चलेंगे। और बेसिस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, चेंज इन वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, अलाइनिंग फिस्कल पॉलिसी है, असेस द आउटकम्स प्लस चैलेंजेस। ठीक बात है, बल्कि एक आध पॉइंट कम भी होता चल जाता। तो मतलब बात वही है कि दोनों की जरूरत है और दोनों का अपना अपना वजूद है। तो आपने इस चीज की कोशिश की, आई थिंक वेल एड्रेस्ड। बड़ा आंसर है, टफ क्वेश्चन है, तो फेयर इनफ, जी। इट इज सिंपल। और वही बात है कि थोड़ा सा अगर और डिस्कस इस पे हम करते तो हम सोच सकते थे कि भाई वैसे आपने दोनों का कंपैरिजन कर दिया, तो नॉट, आई थिंक, नॉट मच टू चेंज। विद रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी, maritime territorial disputes and rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation over flights over the region। Discuss the bilateral issues with India, between India and China in the light of South China Sea। So Indo-Pacific security and peace is symbol of good as said by UN। ठीक बात है। एंड क्वाड भी लिख सकते हो वैसे। इंडिया चाइना रिलेशंस की अगर हम बात करें, सेफ गार्डिंग द ईज ऑफ नेशंस, इश्यूज ऑफ डैश लाइन, ठीक बात है। For example, EEZ of Andaman Nicobar is linked। Belt and Road Initiative, part of China's string of pearls theory, leads to destabilize। Okay, IOR में कर देता है। China's ambitions to exploit critical minerals in ocean seabed violates rule-based order। China believes Quad is anti-China and therefore India is member have challenged 100 billion worth import depending on China। Territorial disputes along LAC in East Ladakh and Arunachal Pradesh। China's proxy support to Pakistan। आपने बिल्कुल सारे पॉइंट आप लेके आए जो इंडिया और चाइना के बीच में एक मुद्दे हैं। और एक और मुद्दा जो आप लिख सकते थे, चाइना जो है कैसे अपने इकोनॉमिक हेफ्ट को यूज करके हमारे इकोनॉमिक इकोसिस्टम को डिसरप्ट या फिर आपको इरिटेट करने की कोशिश करता है। जैसे उसने रेयर अर्थ मेटल्स रोक दिए, फिर उसने जो है अभी फर्टिलाइजर्स रोक दिया। और वो स्ट्रेटेजिक टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ करने की बात करता है। तो पॉइंट वही है कि अच्छा लिखा,
क्योंकि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि चाइना का जो बिहेवियर है उसके लाइट के अंदर आप जो है इंडिया चाइना रिलेशन को, मतलब जी। इंडिया चाइना की जो वो है उसको बायलेटरल इश्यूज के हिसाब से आप देखिए, इंक्लूडिंग फ्लाइट ओवर द रीजन, जैसे ये कह रहा है। तो ठीक है, आपने अच्छी कोशिश की, अच्छे टाइम इन्वायरमेंट में आपने अच्छी कोशिश की। और हम बात कर रहे हैं नीड फॉर सेफ गार्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी में आप बताते कि इंडिया अपना अपना नहीं, जैसे अब श्रीलंका है या बाकी भी कंट्रीज हैं जो भी, और इवन ईस्ट अफ्रीका नेशंस भी हैं, उसके लिए हम डिफेंस के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन दोनों जगह हम हैं। इंडिया और चाइना के बायलेटरल इश्यूज आपने बता ही दिए कि चाइना क्या क्या कर रहा है। तो आई थिंक फेयरली सिंपल, ऑन ट्रैक, बस थोड़े से जैसे अभी हमने क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको किया, तो ये एक लेयर और पकड़ सकता है। Some of the international funding agencies have special terms for economic participation, stipulating a substantial component to the aid to be used for sourcing equipment from leading countries. सही बात है. Discuss on merits of such terms, and if there exists a strong case not to accept such conditions in Indian context. तो वही बात है, पहले हम थे ऐसे, हमें पैसा दे दिया जाता था और ऐसे ही करना है, अपना ये नहीं कर सकते, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, पहले तो ऐसे होता था. Substantial component of aid to be used for sourcing equipment from the leading countries. बेसिकली पैसा देगा अमेरिका, लेकिन अपने हम्म। दबाव में भी रखेगा. हमने तो उसको उल्टा कर दिया, हमने हाँ। एड भी लेनी बंद कर दी. हमने बोला तुम्हें हमें पैसा देना है, तो बदले में ओरिजिनल माल भी यहाँ बनाना पड़ेगा. हम्म। बात खत्म. ब्रिटेन वुड जी। इंस्टीट्यूशंस आर द मेन ग्लोबल फंडिंग एजेंसी विद द नोन, बहुत अच्छा लिखा, वेस्टर्न बायस एंड डोमिनेशन एज दे आर द लार्जेस्ट फंडिंग सोर्सेज. इट्स नेचुरल टू हैव सच डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस एज प्री कंडीशंस फॉर लेट aid to developing countries. So merits क्या है? Able to secure finance to revive the domestic economy. Best quality and advanced modern equipments for nation with civil nuclear agreement between with US and nuclear plants at Jetapur. Open the door for future partnership with apply with developed countries. For example, Apple Foxconn plant, women work at 30%. सही बात है. However, India is focused on original equipment manufacturing with joint venture of late with second wave of re-globalization and declining relevance of World Bank and UN. Signing of latest BTS, I think one अच्छा आपने फोल्ड किया. बीटीएस का हमने बात कर दी, यूके ऑस्ट्रेलिया यूई सनराइज सेक्टर रिन्यूएबल्स अलाइनिंग विद इंडिया डोमेस्टिक पॉलिसी अलॉन्ग विद राइज ऑफ एनडीबी. तो बहुत अच्छा लिखा. यानी सेकंड पार्ट में तो बिल्कुल ही मतलब करेक्ट उसके ऊपर है. फर्स्ट पार्ट में बस वही है कि थोड़ा सा सही आंसर पे आने पे थोड़ा सा सेकंड लगा. वो जैसे कि आपने शुरू में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मतलब मैरिट्स क्या है उन टर्म्स के, इफ, और आपने शुरू में लेकिन बताया कि उनका वेस्टर्न बायस है, बिल्कुल ठीक बोल दिया. और डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस भी आपने शुरू में बोल दिया. तो यानी पार्ट जो आंसर का सेकंड पार्ट है, तो वो आपने पहले बता के और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने आंसर डिस्कस कर दिया. तो जी। मैरिट तो है ये, लेकिन ये मैरिट वो कायदे से तो हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे. डिस्कस मतलब मैरिट ऑफ वैसे सच टर्म्स तो एंड इफ. वैसे हम्म, हाँ, आपने मैरिट बता दी, सही किया, आपने मैरिट बता दी और उसके बाद वैसे आपने बता दी. आप वही कह रही भैया हूँ कि इंडिया अभी के लिए स्ट्रॉन्ग तो केस कोई नहीं बनता है ना एक्सेप्ट करने का. सब्सटैंशियल इंडिया की, मेरिट है हाँ, ही नहीं। हाँ मैरिट नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा. हाँ हाँ, जी। मैरिट नहीं है, अपना स्टैंड रखो, अपना हम्म। स्टैंड रखो, आंसर के बियॉन्ड जाइए, लेकिन मैरिट नहीं है. एड लेके एड दे दी भैया, जापान ने दे दी, अमेरिका ने दे दी. हाँ। अब जापान बोले मैं आपके लिए इतना मेट्रो के लिए दूंगा, मैं इतना बुलेट ट्रेन के लिए दूंगा, लेकिन आपको बदले में मुझे ऐसे करना पड़ेगा. तो ऐसे थोड़ी ना जी। टाई अप हो सकता. हम्म। वी आर ए फ्री फेयर कॉम्पिटेटिव एंड डेमोक्रेटिक नेशन. चलिए आगे. जी। आईआईटी आए हम वाला क्वेश्चन हम देखते हैं. जैसे प्रमुख संस्थान अक्सर उच्च गुणवत्ता और अनुसंधान प्रणाली को प्रोत्साहन करते हैं. सही बात है. वैश्विक स्तर प्रतिबद्धता को भारत में राहत देते हैं. ठीक बात है. स्वयं चयन करना, निर्णय लेने की अनुमति को चुनौती, पारदर्शिता और निरंतर नवीनतम उच्च गुणवत्ता का निर्माण करना, अल्पसंख्यक एससी एसटी के लिए प्रमुख विधानों में चयन, राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े बदलाव को लाने के लिए एक समानता का निर्माण करने के लिए मापदंड होना चाहिए. सही बात है. तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा में आने वाले बदलावों के अनुकूल पर्यावरण का निर्माण करना. लास्ट पॉइंट भी बहुत अच्छा है. तो आपने पूरा नहीं लिखा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, वो आपको उस तरीके से देखना है. आधार कार्ड एक यूनिक नंबर है, पहचान है जो कि स्वैच्छिक है, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न नीतियों का लाभ के लिए अनिवार्य है. एनपीआर एक अनिवार्य पहलू है, बिल्कुल सही बोला. नागरिक अधिनियम 1955 के तहत सभी व्यक्तियों को डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक पहचान के साथ साथ एक डेटाबेस तैयार रखना है जो जनसंख्या की गणना के रूप में मूलतः भारतीयों को डाटा है. दो योजनाओं का उद्देश्य दक्षता, पारदर्शिता, कल्याणकारी कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना. व्यक्ति की स्पेलिंग गलत है, इसलिए दोनों योजनाओं के माध्यम को एक विशेष अंक प्रणाली नंबर प्रदान किया जाता है. विकासात्मक लाभ. ये आंसर आपने फिर भी बहुत स्ट्रक्चर लिखा और बहुत सारा आपने आइडियाज को पुट अप किया.
अब चीन वाले पे आ जाते हैं। दक्षिण चीन सागर में भूमध्य विवाद का कारण जापान की विस्तारवादी नीति का ताइवान जापान के साथ 20 अन्य देशों पर अपना आधिपत्य शासन बताने भारत चीन के द्विपक्षीय मुद्दे में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद, एलओसी पर पेंगोंग झील, 8 लाइन्स का गश्त संबंधी विवाद, हिंद महासागर में सैन्य अड्डों का निर्माण, मोतियों की माला नीति, पड़ोसी देशों के साथ ऋण जाल नीति के तहत व्यापार में डंपिंग नीति। तो आपने बहुत अच्छे, इस आंसर में भी आपने बहुत, मतलब हमने जो डिस्कस किया था, सिंपलिसिटी की बात करूं तो पॉइंट्स तो हमें सब पता है, लेकिन आपने बहुत सिंपल से इसको पुटअप करके कोशिश की। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। और ये आंसर तो हम इंग्लिश में हमने नहीं किया है, तो हम कर देते हैं। सूचना सर प्रौद्योगिकी समझौता। हाँ, सर, अच्छा ये वाला हाँ आई ये वाला। कोई बात नहीं, आईटी एक महत्वपूर्ण पहलू है डब्ल्यूटीओ की, ताकि सूचना और प्रौद्योगिकी उदारीकरण हो, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिले। भारत का निर्यात मुख्य रूप से सेवाओं पर आधारित है, जिससे प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बनने के लिए भारत द्वारा ईयू, जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान, ऑस्ट्रिया जैसे देशों के साथ समझौता कर तथा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। बिल्कुल सही बात है। ग्लोबल साउथ पहल के तहत विकासशील देशों और अफ्रीका में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार करना। संचार आसान बनाने के लिए बीएसएनएल की पहल। भारत का एआई मिशन, एआई फॉर ऑल के तहत कृत्रिम स्वर्णिम कृति जैसे मॉडल का निर्माण करना। तो अच्छा है, पॉइंट है बिल्कुल। और हमने जैसा बात की कि आंसर्स आर रिफ्लेक्टिंग दोज थिंग्स एंड दोज आइडियाज, बट we have to keep on churning, keep on trying to keep it simple. We have to read answer carefully once or twice and try to bring exactly what the question is asking and going little further. तो दिव्या, जी आप क्या बोलोगे इनके आंसर और अपने आंसर्स को? आप किस दिशा में जा रहे हैं ये बताइए आप। सर, वो आंसर स्टार्टिंग से एंड तक की तरफ जाते हैं, पूरा फ्लो बनता है, पढ़ते हैं तो स्टार्ट हो रहे हैं, एंड तक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं सर। हमारे कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते और क्वेश्चंस की डिमांड भी पूरी होती है। नहीं, सारे ऐसे नहीं है आपके। जैसे दूसरा और तीसरा जो था लास्ट में, दोनों में अच्छी कोशिश थी, आ रहा है वो काफी हद तक। उसका स्ट्रक्चर भी अच्छा था। जैसे गणना वाला भी ठीक है, लेकिन वही आंसर एकदम सिंपल होना चाहिए। आंसर एकदम पूरा सीक्वेंस में चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जी सर, फैक्ट्स और डाटा लेकर आना है सर हमें, जो पहले वाले आंसर्स में होता है सर। और इंग्लिश वाले में आ रहा है, आप हाँ ये जी कह रहे सर, हो? हाँ जी सर, जी अब सर। आ रहा है। यस आप सर। क्या कहते हैं मन से? सर एक तो इसी मोमेंटम को मेंटेन करके जो है वो ऑनेस्टली वो लिखना है, तो उससे मतलब वो पॉइंट आ जाता है बाहर। वो जो पहला क्वेश्चन था प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाला, उसमें सर जैसे मैंने लिखा तो क्या उसको हम इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन बोल इनकरेक्ट सकते नहीं हैं? करते। एग्जामिनर क्या करता है कि वो, मतलब कि देखिए, इतना फास्ट होता है सब कुछ कि वो गलत ऐसे काट नहीं रहा उसको। लेकिन पॉइंट ये जो मांगा नहीं जा रहा, मतलब क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन जो मांग रहा था, तो लिखने के नंबर तो नहीं देगा वो, एक दो कुछ देके छोड़ हम्म, देगा उसको। हाँ, जी ये जरूर है, अगर ये क्वेश्चन मान ले बीच में है हाँ। और आपने सारे आंसर बहुत अच्छे लिखे हैं, तो दो, हम्म, सवा दो दे देगा। जी। और अगर मान लो हम बिल्कुल ही कुछ भी हमने पहले के आंसर्स में भी हमने कोई इंप्रेसिव वर्क नहीं किया, तो यहाँ पे 2 की जगह वो 1.5 दे देगा, बस इससे ज्यादा कुछ हम्म, नहीं। तो लेकिन नेगेटिव नहीं है, मेंस है ये, कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना है ये। यहाँ तो हाँ जी, आंसर जैसा लिखोगे वैसे मार्क्स आएगा। हाँ। तो और इंटरप्रिटेशन थोड़ा गलत हो जाता है, लेकिन एग्जाम में यही है कि आपको बहुत चौकन्ना और स्मार्ट होकर अभी से अगर आदमी देखेगा तो पकड़ देगा। हम्म, इसीलिए आंसर लिखते टाइम भी साथ साथ में ऐसे आंसर चल रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन देख लेना चाहिए बीच में कि, क्योंकि आपने आंसर लिखने से पहले फ्रेमवर्क जो माइंड का बना, आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने मिडल तक आप आ रहे हो उसके, तो लेकिन आप बीच में एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो कि मैं सही जी तो एड्रेस कर रहा हूँ। जो हाँ। 3 पार्ट अगर आंसर के, तो अरे मैंने बराबर देखा तो दे दी, ये पता नहीं चला ना, पहला बड़ा एरिया दे दिया, फिर छोटा हो गया, हम्म, अरे यार अब तो इसको कंक्लूड करना पड़ेगा, ओहो, फिर आप जल्दी से जी। वो जो फ्लक्चुएशन है वो नहीं हम्म, आनी चाहिए, फ्लो में हाँ आना चाहिए। तो वो जी। प्रैक्टिस और रीजनेबल थिंकिंग से होता है। तो हाँ बट इट जी सर। इज एब्सोल्युटली फाइन, वी डू समथिंग, बट देन अगेन वही है जो हमारी लर्निंग है। हमने बाकी जगह भी बोला, जो लेयर 2 है किसी भी चीज की, वो हल्की सी और सिंपल हम्म, सिंपल, दैट इज द वे अहेड। हाँ जी। मतलब आप जैसे है, अब जैसे भाई पॉलिटी का ये जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है, और उन आंसर्स के अंदर ही आपको एक नया सोच को तैयार करके बताना। हाँ जी साहब। तो आएगी नई सोच भी, लेकिन वो हम्म, कुछ रटा होना चाहिए, कुछ मसाला, हाँ कुछ थोड़ा बहुत। आर्टिकल्स, कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा, वो रटा होना चाहिए, वो एक तरफ है। और फिर उसके हाँ। बाद भाई उसी को फिर वही बात है, ऑन द स्पॉट जैसे आपको जोक सुनाने हैं, हम्म, तो आपने जोक्स याद नहीं किए थे, आपने इंसिडेंट्स याद किए थे।
अब मौका पाके आपने वो इंसिडेंट्स घुसा दिए, चलो एक और इंसिडेंट बताता हूँ, लोग हंस रहे हैं, आपने एक और बता दिया, तो कम वाला भी चल गया उसमें, जी। लेकिन मूड खराब है, तो बेस्ट ऑफ द हम्म। जोक्स भी नॉर्मल हाँ। लगेगा वो। ठीक है ना, तो इसीलिए वैगरीज है, जैसे वैगरीज ऑफ मॉनसून बोलते हैं ना, तो यहाँ भी यही है, अच्छा लिखा, बढ़िया आंसर लिखा, सही चल रहा है सब, निकल गया, पास हो गया, हम्म। यही बात। हाँ जी सर। So thank you very much, one and all, for being with Ansarkari and also trying your best to put your best to get the best. Thank you very much.